Hello students of class 11th. I welcome you in today's English literature lecture. Today I'll continue with the story The Summer of the Beautiful White Horse. Today I have come with its third part. The third part is every family has a crazy streak in it somewhere, and my cousin Murad was considered the natural descendant of the crazy streak in our tribe. Before him was our uncle Khosrow, an enormous man with a powerful head of black hair and the largest mustache in the Saint Joaquin Valley. A man so furious in temper, so irritable, so impatient that he stopped anyone from talking by roaring, "It is no harm, pay no attention to it." That was all, no matter what anybody happened to be talking about. Once it was his own son Arak running 8 blocks to the barber shop where his father was having his mustache trimmed to tell him their house was on fire. This man, Khosrow, sat up in the chair and roared, "It is no harm, pay no attention to it." The barber said, but the boy says, "Your house is on fire." So Khosrow roared, "Enough, it is no harm, I say." My cousin Murad was considered the natural descendant of this man, although Murad's father was Zorab, who was practical and nothing else. That's how it was in our tribe. A man could be the father of his son's flesh, but that did not mean that he was also the father of his spirit. The distribution of the various kinds of spirit of our tribe had been from the beginning capricious and vagrant. We rode and my cousin Murad sang. For all anybody knew, we were still in the old country where, at least according to some of our neighbors, we belonged. We let the horse run as long as it felt like running. At last, my cousin Murad said, "Get down. I want to ride alone." "Will you let me ride alone?" I asked. "That is up to the horse," my cousin said. "Get down." "The horse will let me ride," I said. "We shall see," he said. "Don't forget that I have a way with a horse." "Well," I said, "any way you have with a horse, I have also." "For the sake of your safety," he said, "let us hope so. Get down." अब बच्चों इसका अनुवाद देख लेते हैं। हर परिवार में सनकीपन की एक धारा कहीं न कहीं होती है। मुराद कबीले में उसी सनकीपन की धारा का स्वाभाविक वंशज था। उससे पूर्व हमारे अंकल खोसरो थे, जो भारी डील डॉल वाले व्यक्ति थे, सर पर काले बाल थे तथा सन जोकिन वैली में सबसे बड़ी मूँछों वाले थे। उनका क्रोध बहुत भीषण था। वह इतने चिड़चिड़े तथा बेसब्री वाले थे कि वह किसी को भी अपनी दहाड़ के आगे बोलने नहीं देते थे। "कोई बात नहीं, इस पर ध्यान मत दो," वह यही बोलते थे, सामने वाला चाहे कुछ भी कह रहा हो। एक बार उनका अपना बेटा अरक दौड़कर 8 मकानों से परे
नाई की दुकान पर गया जहां उसके पिता अपनी मूछें ठीक करवा रहे थे। उसने बताया कि घर में आग लग गई है। खुसरो कुर्सी पर सीधे बैठकर दहाड़े, कोई डर की बात नहीं, उस पर ध्यान मत दो। नाई ने कहा, पर बालक कह रहा है कि आपके घर को आग लग गई है। इस पर खुसरो दहाड़े, काफ़ी हो गया, कोई खतरे की बात नहीं है, मैं कह जो रहा हूँ। मेरा भाई मुराद उन्हीं का वंशज था। यद्यपि मुराद के पिता ज़ुराब थे, जो व्यवहारिक होने के अलावा अन्य कुछ भी न थे। यह था हमारे कबीले का हाल। व्यक्ति किसी बालक का पिता चाहे हो जाए, पर इसका यह अर्थ नहीं कि वह उसकी मनोवृत्ति का ही जनक हो। हमारी जनजाति में प्रवृत्तियों का वितरण शुरू से ही आवारा तथा मनमौजी किस्म का था। हमने सवारी की तथा मेरे भाई ने गाने गाए। यह सबको पता था कि अब हम अभी भी पुराने ग्रामीण क्षेत्र में हैं, जहाँ के हमारे कुछ पड़ोसियों के अनुसार हम मूल निवासी हैं। हमने घोड़े को दौड़ाने की पूरी छूट दे दी। अंत में मुराद बोला, अब तुम उतर जाओ, मैं अकेला ही सवारी करूँगा। क्या तुम मुझे भी अकेले सवारी करने का मौका दोगे? मैंने पूछा। यह तो घोड़े की इच्छा पर है, मेरा भाई बोला, उतर जाओ। घोड़ा मुझे सवारी करने देगा, मैंने कहा। देखा जाएगा, वह बोला। यह मत भूलो कि मुझे घोड़े को काबू में करना आता है। अच्छा, मैं बोला, जो हुनर तुम्हारे पास है मेरे पास भी है, तुम्हारी सुरक्षा इसी में है। वह बोला, अब उतर भी जाओ। तो बच्चों, ये जो कहानी है, इस कहानी में एक बच्चा है जो ये कहानी पूरा सुना रहा है, और दूसरा उसका कज़न है मुराद, यानी चचेरा भाई। तो जो कहानी सुनाने वाला है वो, उसे घोड़े बहुत ज़्यादा पसंद हैं, घोड़े की सवारी करना उसको बहुत पसंद है, लेकिन वो एक बहुत ही मामूली कबीले का रहने वाला है, बहुत गरीब परिवार से रहने वाला है। वो जगह जहाँ पर भरपेट भोजन भी नहीं हो पाता, उसका भी भरोसा नहीं रहता है उनको। तो ऐसे स्थिति में घोड़ा कहाँ से ख़रीदा जा सकता है? लेकिन उसका भाई मुराद, वो पता नहीं कहाँ से जुगाड़ करके एक घोड़ा ले आता है और उसके घर के पास आता है और उसको कहता है कि चलो, अगर घोड़े पर सवारी करना है तो। और जो कहानी सुनाने वाला है वो घोड़े पर चढ़ता है, उसको देख करके बहुत अच्छा लगता है। कुछ दूर तक दोनों बड़े मज़े में सवारी भी करते हैं, और फिर उसके बाद उसका भाई मुराद कहता है कि अब तुम घोड़े पर से उतर जाओ, मैं अकेले सवारी करना चाहता हूँ। ये बात कहीं उसे अच्छी नहीं लगती है, लेकिन फिर भी क्योंकि घोड़ा मुराद का है तो इसलिए उसे उतरना पड़ता है। लेकिन वो ये कहता है कि मुझे भी क्या तुम अकेले सवारी करने दोगे? तो मुराद कहता है कि देखा जाएगा। और इस बीच इस पैराग्राफ में ये भी बताया गया है कि मुराद थोड़ा सनकी टाइप का बच्चा है। सनकी कैसे है कि उसके ख़ानदान में एक खुसरो नाम के व्यक्ति थे, जो बहुत ही ज़्यादा लंबे चौड़े डील डॉल वाले और सनकी पने में सबसे ज़्यादा माहिर। तो ऐसा लगता था जैसे उनके गुण मुराद में आ गए हैं। तो बच्चों, आज के लिए कहानी इतनी ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में लेकर आएंगे। थैंक यू।